Welcome back to our YT series in which we are decoding films PYQs from 1979 to 2024. Here we are solving 45 plus years of questions and it is theme wise and subject wise. The same question you can appear on our PYQ portal on our website, Edukami के website पे, and for the same theme we'll provide class notes. Similar initiatives of this YT series of PYQs is going on for SNT, Geography and Environment. एक और चीज हमारा फिल्म सपोर्ट प्रोग्राम PSP 2025 is commencing or starting from 9th of December 2024. Do check out its components. So let's start. Today's topic is Parliament. We have done earlier 3 videos on parliaments in which we have solved 30 questions. ठीक है, ये पार्ट 4 है. इसके पहले के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, है ना. डू सॉल्व दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस. फाइन. तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 2013 का. इसके पहले वाले पार्ट्स में हमने 3 पार्ट में 2024 से 20 एंड 20 अराउंड 2014 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 10 साल के. Now moving ahead, consider the following statements. The Parliamentary Committee on Public Accounts, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है पब्लिक अकाउंट. ठीक है. Consist of not more than 25 members of Lok Sabha, scrutinizes appropriation and finance account, examine the report of CAG. ठीक है. Now it is said the Public Account Committee and CAG has a special relation. CAG is kind of a guide and a friend to this committee, Parliamentary Committee on Public Account, because it puts a accountability mechanism on the executive. ठीक है. तो एग्जामिन रिपोर्ट ऑफ CAG, यस. कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स, दिस इज रॉन्ग. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट पब्लिक अकाउंट कमिटी, दे हैव 22 मेंबर्स, 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा. ठीक है. 25 मेंबर्स नहीं होते. तो फर्स्ट रॉन्ग है, हटाया मैंने, तो अपने आप थर्ड सही हो गया. एंड इट स्क्रूटिनाइजेस फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. यस, स्क्रूटिनाइजेस एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. यस. ठीक है. द आंसर इज बी, 2 and 3 only. Now, some pro mentor tip for you. इसको ध्यान से देखिएगा. Pro mentor tip. CAG और provides 3 reports. ठीक है. Appropriation मतलब withdrawal. बहुत easy words में समझेंगे. Then second is finance report. ठीक है. मतलब incoming basically money. And lastly, public undertaking report. अब इसमें से ये जो फर्स्ट के 2 रिपोर्ट्स हैं, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी स्क्रूटिनाइज करती है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक अंडरटेकिंग का रिपोर्ट, इट इज स्क्रूटिनाइज्ड बाय कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. ठीक है. हमेशा इसको ध्यान रखिएगा. और these all committees like public account committee, estimates committee and committee on public undertaking, these are type of financial committee which is very important. Now moving to next question. Question number 2. Regarding the office of Lok Sabha Speaker, consider the following statements. Now, Speaker as a theme is very important. He or she holds the office during the pleasure of President. He or she need not be a member of the House at the time of his or her election, but has to become a member within 6 months from the date of his or her election. No. ठीक है. जब भी कोई स्पीकर बन रहा है, इसका मतलब वो मेंबर होना जरूरी है. दैट इज मैंडेटरी, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी. तो 2 नहीं है. ठीक है. हम लोग बचा या तो 3 ओनली या तो नन. If the speaker, if he or she intends to resign, the letter of his or her resignation has to be addressed to deputy speaker. Yes. So the answer here is 3 only. Now, one more pro mentor tip for you. कि अगर speaker को resign करना है, तो that person, speaker can resign to deputy speaker. And अगर deputy speaker को resign करना है, तो he or she can resign by writing it to speaker. ठीक है. ये ध्यान रखना. Fine. Resignation का. ठीक है. The answer here is B3 only. Now this is important note. Please make this note. But speaker can also be removed on getting disqualified from being a Lok Sabha member under section 7 and section 8 of RPA. ठीक है. ये ध्यान रखिएगा. Moving to next question. Before moving, we are coming up with our PSP 2025 and following are its components: practice test, marathon session, book reading sessions, revision sessions, sectional test, full length test. यूपीएससी मिक्स टेस्ट होगा. करंट अफेयर्स के रिवीजन भी होंगे लगभग 1 साल के. सीसैट सपोर्ट मिलेगा. 1-to-1 मेंटरशिप है. टेस्ट डिस्कशन एंड लास्टली प्रयास. एंड दिस इनिशिएटिव स्टार्टेड फ्रॉम 9th of December 2024. Here are some of achievements or USPs of our PSP. That around 45% of the enrolled students qualified this year,
2024 प्रीलिम्स, एंड लगभग 50% जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली हिट थे, हमारे पीएसपीज थे. दे अटेम्प्टेड विद मोर कॉन्फिडेंस एंड दे हैव बूस्टेड देयर एक्यूरेसी. प्रीलिम्स में याद रखिएगा, एक्यूरेसी का बूस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइन, लेट्स मूविंग on to next question. In the Parliament of India, the purpose of adjournment motion is fine. अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो पर्पस ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन है क्या? It was asked in 2012 to allow a discussion on definite matter of urgent public importance, to let opposition members collect information from ministers. No, this is not a kind of adjournment motion. Adjourn होना, right? उससे कुछ थोड़ा can relate it. To allow a reduction of specific amount in demand of grant, this is cut motion. To let the opposition members collect information kind of thing, this is question hour. To postpone the proceedings to check the inappropriate or violent behavior on the part of some members. ठीक है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं लग रहा. ठीक है, to allow a discussion on definite matter of urgent public importance, this is the answer of adjournment motion. ठीक है, the answer is A, adjournment motion. ठीक है, now हमको कमेंट में बताइए कि what do you mean by no confidence motion. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो कॉन्फिडेंस मोशन. हमको कमेंट करके बताइए कि व्हाट डू यू नो अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या होता है ये. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया? द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2012. अब इसको सॉल्व करते हैं. प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को बजट बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही बजट बोलते हैं. फाइन, यस. विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल. यस, है ना, जब बिल पास हो गया एप्रोप्रिएशन का, तभी उसके बाद यू हैव दैट अथॉरिटी टू विड्रॉ मनी. देन प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोट ऑन अकाउंट. यस, ठीक है. देन अ पीरियोडिक और एटलीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस. अब ऐसा कोई बजट ऑफिस एग्जिस्ट करता ही नहीं है इंडियन पार्लियामेंट में. देर इज नो ऑफिस सच एज पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस. ठीक है, ये रिकमेंडेशन में है कि ये होना चाहिए, बट एट प्रेजेंट देर इज नो पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस. तो फोर्थ तो रॉन्ग है. ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट. यस, इट इज करेक्ट. तो 4 को मैं हटा देता हूँ. ठीक है, तो अपने आप आई कैन गेट द आंसर ए 1 2 3 एंड 5. बट इट इजी क्वेश्चन, आपको राइट स्टेटमेंट पिक करना है. राइट, वन प्रो मेंटोर टिप फॉर यू, दैट जो क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है, इफ द क्वेश्चन इज लेंदी, फाइन, इन जनरल ये देखा गया इट इज काइंड ऑफ इजी. ठीक है, तो देख के डर नहीं जाएगा लेंथ का, ये बहुत बड़ा है. जनरली वो इजी होता है. देखा हमने कि हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट का एक कीवर्ड पकड़ा एंड वी रीच टू एन आंसर 1 2 3 एंड 5. ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. अ डेडलॉक between Lok Sabha and Rajya Sabha calls for joint sitting of the parliament during the passage of. ठीक है, कि जॉइंट सिटिंग हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है कि इट आर्टिकल 108 डील्स विद जॉइंट सिटिंग. फाइन, अगर डेडलॉक हो गया लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में एंड जॉइंट सिटिंग होना है, तो किस किस केस में हो सकता है? तो हमने डिस्कस किया है पहले भी, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के केस में हो सकता है, बट मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर जॉइंट सिटिंग. हमेशा ध्यान रखिएगा. तो 2 एंड 3 नहीं होगा आंसर. आंसर इज ए. अगर आपको ये भी पता होता कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में पॉसिबल नहीं है जॉइंट सिटिंग, तब भी आपका आंसर आ जाता है, बिकॉज 3 सब में कॉमन था. तो यूपीएससी वांटेड यू टू पिक द राइट statement or right option and try to eliminate it and get to a right answer. The answer here is A1 only. ठीक है, let's move to next question. Question number 6. What is the difference between vote on account and interim budget? Now let's read the statements. The provision of vote on account is used by regular government, while an interim budget is in provision used by caretaker government. Now vote on account regular government यूज करती है, ये तो ठीक है, अपना खर्चा चलाने के लिए गवर्नमेंट को पहले कुछ फंड्स चाहिए होते हैं. ठीक है, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ बजट टेक्स टाइम. तो वोट एंड अकाउंट इज काइंड ऑफ अ 1/6 ऑफ द टोटल बजट, है ना. गवर्नमेंट अपने खर्चे चलाने के लिए जब तक बजट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा चलाने के लिए वो निकालती है. व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरिम बजट, इट इज जनरली पास इन इलेक्शन ईयर. ठीक है, क्योंकि जब हमारा बजट पास होता है कब होता है? लगभग फरवरी में होता है ना, इलेक्शंस होते हैं मई में. फाइन, तो अगर गवर्नमेंट आएगी वापस, वाली गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी, इट्स नॉट नोन, राइट. तो इस वजह से दैट गवर्नमेंट जिसका लास्ट टर्म होता है वो पास करते हैं इंटरिम बजट. द फर्स्ट स्टेटमेंट, द सेकंड पार्ट, व्हाइल इंटरिम बजट इज प्रोविजन यूज्ड बाय केयरटेकर गवर्नमेंट, ये गलत है. ठीक है, द प्रोविजन ऑफ वोट एंड अकाउंट इज यूज्ड बाय रेगुलर गवर्नमेंट, यस, बट
बट वाइल एन इंटरिम बजट इज प्रोविजन यूज बाय केयर टेकर गवर्नमेंट, नो, ऐसा कुछ नहीं है ना. सेकेंड, अ वोट एंड अकाउंट only deals with expenditure in government's budget, while an interim's budget include expenditure and receipt, है ना. तो if I talk about budget, budget का मतलब ही होता है annual financial statement. Financial statement मतलब receipt and expenditure, ठीक है. तो ये तो सही हुआ. सेकेंड, वोट एंड अकाउंट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर. अभी हमने देखा क्या ये 1/6 का बजट का एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे निकाल रही है गवर्नमेंट, अपने खर्चे निकालने के लिए कुछ फंड्स विड्रॉ कर रही है, तो ये एक्सपेंडिचर की बात हो रही है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, आंसर इज B2 ओनली. क्लियर, आंसर इज B2 ओनली. नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द एनुअल बजट इज नॉट पास बाय लोकसभा, जब एनुअल बजट लोकसभा पास नहीं करती, 2011 का क्वेश्चन है, तब क्या होता है, ठीक है. मतलब इट इज काइंड ऑफ डिफीट ऑफ गवर्नमेंट. जब बजट ही पास नहीं हो पाई, मतलब इट इज काइंड ऑफ डिफीट ऑफ गवर्नमेंट. मतलब प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट. राज्यसभा में जाएगा नहीं सजेशन के लिए. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रन, नहीं, है ना, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर स्टैंड एट द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, हु आर एडिंग एंड एडवाइजिंग प्रेसिडेंट, फाइन. But when they are not able to pass union budget, मतलब they have lost the confidence of the house and the prime minister submits their resignation. ठीक है, आंसर इज डी. Since the budget is not passed, that is equivalent to losing vote of confidence. That is the reason PM should resign. ठीक. Moving to next question, 2011 का क्वेश्चन है. All revenues received by union government by the way of taxes and other received for the conduct of government business are credited to. मतलब सिंपल सिंपल वर्ड में पूछ रहा है, गवर्नमेंट के पास जितने भी पैसे आते हैं इन जनरल बाय द वे ऑफ टैक्स एंड गवर्नमेंट बिजनेस से, वो कहाँ जाते हैं, कौन से फंड में आते हैं. तो इट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट. ऑलवेज रिमेंबर, अ प्रो मेंटोर टिप फॉर यू, just note down that India, we have three type of fund. First is consolidated fund of India, ठीक है, which article 266 subclause 1, ये article पता होना चाहिए. Then you have contingency fund of India, which article 267 है ना, I'm repeating it again. Third fund or account, it is public account, है ना, ये लिखा हुआ है public account, this is public account, ठीक है. article I'm writing here, article 266 subclause 2, got it. तो जब consolidated fund of India है, यहाँ से अगर आपको फंड विड्रॉ करना है तो आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है. बट पब्लिक अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है, पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लगता है. एग्जीक्यूटिव कैन विड्रॉ, एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा विड्रॉ कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. फिर से देखो सिमिलर ही क्वेश्चन पूछ दिया. द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, कहाँ से आएगा, पार्लियामेंट से आएगा, राइट. प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, ठीक है. पार्लियामेंट इज गिविंग ऑथराइजेशन, ठीक है. एंड इन दैट वे पार्लियामेंट ऑल्सो चेक्स टू एग्जीक्यूटिव, है ना, बिकॉज दैट इज द कोर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है. एंड लेजिस्लेचर इज काइंड ऑफ एनफोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, ठीक है, through these funds and through this powers. Moving to next question. हाँ, again pro mentor for you basically. What you need to learn, article 114. Article 114 talk about no amount can be withdrawn from the consolidated fund of India without authorization of parliament or the legislature of states in the at the state level. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको आपको नोट्स बना लेना है. Moving to next question, which is last question of this video. Which one of the following is responsible for the preparation and presentation of union budget to the parliament? ठीक है, तो ये सब जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स है, फाइन. अब एक्सपेंडिचर नहीं है, बजट की बात कर रहा है. बजट मतलब क्या होता है, दोनों, रेवेन्यू भी है, एक्सपेंडिचर दोनों आएगा, ठीक है. तो रेवेन्यू तो सिर्फ रेवेन्यू की बात करेगा, एक्सपेंडिचर की बात करेगा, तो ये दोनों तो नहीं है. फाइनेंशियल सर्विसेज जो है दूसरे टाइप की सर्विसेज की बात करता है, लाइक इंश्योरेंस, पेंशन एक्सेट्रा, ठीक है. फाइनेंशियल इंक्लूजन ये भी नहीं है. बचा क्या, इकोनॉमिक अफेयर्स. इकोनॉमिक अफेयर्स टॉक्स और हैंडल्स बोथ अबाउट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एंड इट एक्चुअली हेल्प्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट. नाउ वन मोर प्रो मेंटोर टिप फॉर यू. क्या है ये कि इकोनॉमिक सर्वे इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय दिस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है, इतना ध्यान रखिएगा, राइट.
Let's see the solution. Department of Economic Affairs is responsible for the preparation of union budget as well as survey, economic survey. Fine. I hope you're liking this initiative, and for more videos, stay tuned. Thank you.